class. Today we are starting PN junction, and before starting PN junction we are going to find the pattern of the questions asked from this topic. See, these two terms are very important. Although potential barrier is asked in 2020, but depletion region is asked in 2017, and from 2017 it's 3 years now. So this is a very important and expected question for this year. Very, very important. Right? तो इसको हम समझने के बाद अच्छी तरह से लिखेंगे और लर्न करेंगे. इसके बाद देखो, बहुत सारे सालों में आया है मिक्स क्वेश्चंस. क्या क्या है देखो. फॉरवर्ड बायस किसे कहते हैं? व्हाट इज रिवर्स बायसिंग? सर्किट डायग्राम व्हेन द डायोड और पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस. सर्किट डायग्राम व्हेन junction is reverse biased using symbol, not the block diagram. We will see when we will understand PN junction. So this is very, very important. You can understand that why it is important, because from 2017 it is not being asked. So what is forward biasing and what is reverse biasing is very much expected in 2021. Then diode as a half wave rectifier, its circuit diagram, what is input to this half wave rectifier and what is output. See, this is also asked frequently. It is asked in 2019 but not in 2020. So you can easily understand that this is important for us. Then full wave rectifier, its circuit, working of full wave rectifier, input signal of full wave rectifier and what is output of this input. In 2015 and also in 2-3 years this question is being asked. तो ये भी बहुत important है, बल्कि I will say that it is very important because half wave rectifier is being asked in 2019 but full wave rectifier 2015 के बाद काफ़ी समय से नहीं पूछा गया है. पहले कई साल पहले ये कई बार पूछा जा चुका है. मुझे 2015 का ही पेपर में दिखा क्योंकि मेरे पास 10 इयर्स के ही पेपर है, लेकिन ये उससे पहले कई बार पूछा जा चुका है. ज़ेनर डायोड बहुत इम्पोर्टेंट था, हर ऑल्टरनेट ईयर आता था, लेकिन रिड्यूस सिलेबस में ये नहीं है तो ज़ेनर डायोड नहीं. लेकिन LED, व्हाट इज लाइट एमिटिंग डायोड? This question is being asked in 2005, 2006 और उसके बाद भी एक बार पूछा गया शायद 17 में. तो LED भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बल्कि मैं कहूँगी कि इस साल जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस टॉपिक से बन रहे हैं उसमें या तो LED है, या एक क्वेश्चन फुल वेव रेक्टिफायर पर है, या हाफ वेव रेक्टिफायर पर है, या फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग पर है. ठीक है. इसके अलावा इससे कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए हैं, उनको भी देख लेते हैं. इन 2003 देयर वाज अ क्वेश्चन दैट सर्किट डायग्राम इज गिवन एंड द क्वेश्चन इज कंप्लीट दिस सर्किट एंड क्वेश्चन इज इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट. And in 1996 a circuit was given and question was what is voltage across the capacitor. Recently in 2018 there was a question. The forward characteristic of PN junction diode was given and you are supposed to calculate resistance at V equal to 0.5. Resistance using this data and I equal to 60 milliampere. That is resistance for this data, right? And then in 1994 there is a question. A circuit is given, input is applied. This input is a square wave which is varying from -1 volt to +1 volt, and it is applied to a PN junction and you are asked to draw output. So now we are ready to start PN junction. Focus on the theory. ध्यान से समझेंगे इस बात को. ये जो एक पीस है
ये एक छोटा सा सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर का पीस लिया और उसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स कर दी। पेंटावैलेंट मतलब इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर बना दिया पूरे सेमीकंडक्टर पीस को। देन it is doped in a very controlled manner. It is doped with trivalent impurity. ध्यान से सुनो, पहले पूरे सेमीकंडक्टर पीस को, इसे क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर वेफर, इसको पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से डोप किया, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया। उसके बाद इसमें बहुत कंट्रोल्ड मैनर में एक ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी डोप की, इतनी कंट्रोल्ड that it penetrates, the impurity is penetrating up to some depth of this material and making this part of the material as p-type. ये जो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी है ये सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन में हमने डोप की जिससे ओवरऑल जो ये पार्ट है ये पी टाइप बन जाए, जबकि ये पार्ट एन टाइप रह जाएगा। ठीक, तो बहुत कंट्रोल्ड वे में एक लिमिटेड डेप्थ तक रीच कर पाए, इतने कंट्रोल्ड वे में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करके इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बना दिया। इतना स्ट्रेंथ, इतना कॉन्सेंट्रेशन डोपिंग का रखा कि ये पी टाइप फाइनली हो जाए। अब P और N के बीच ये है जंक्शन। ठीक है, ये जंक्शन बन गया यहाँ पर। अब यहाँ क्या होगा, ये इस डिवाइस को बिल्कुल बदल देने वाला है, रेवोल्यूशनरी डिवाइस जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स को बदल दिया। तो अब पीएन जंक्शन पर क्या होता है वो हम समझेंगे। तो 3D डिवाइस में बेटा ये कैसा दिखेगा, ये एक छोटा सा पीस होगा 3 डायमेंशनल, जैसे ये छोटा सा पीस है ना, इमेजिन करो कि इसको ये सेमीकंडक्टर है और इस पर हमने पूरी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स की, इसको एन टाइप बना दिया। एन टाइप बनाने के बाद इसमें थोड़े से हिस्से में पी टाइप इम्प्योरिटी मिक्स की और इसको पी टाइप बना दिया। तो ये पी टाइप इम्प्योरिटी थी, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी थी, इससे ये एन टाइप बना और ये बीच में हमने कुछ डेप्थ में पी टाइप इम्प्योरिटी मिक्स की, ये पी टाइप बन गया। अब इन दोनों के बीच का ये जो जंक्शन है एक्चुअली क्या है, ये एक प्लेन है। देखो, अगर हम इसे एक मॉडल समझकर, एक सेमीकंडक्टर वेफर का मॉडल समझकर इसको इस तरह से कट करें तो ये वो प्लेन है जहाँ पर एन टाइप और पी टाइप दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर्स मिल रहे हैं। तो ये क्या है, ये है पी एन जंक्शन। आई होप कि तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ये जो प्लेन है जहाँ पर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मिल रहे हैं, ये प्लेन वो जंक्शन है जिसके आसपास के एरिया में कुछ एक्टिविटीज़ होंगी और वो एक्टिविटीज़ इस डिवाइस के नेचर को डिसाइड करेंगी। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं कि हम इस एंड पर और इस एंड पर एक मेटल डिपॉजिट कर देते हैं जिससे कि यहाँ से वायर और यहाँ पे वायर वेल्ड करके इसको 2 टर्मिनल डिवाइस बनाया जा सके। यहाँ पे मेटल वेल्ड की, यहाँ मेटल डिपॉजिट किया, यहाँ मेटल डिपॉजिट किया जिससे 2 कांटेक्ट पॉइंट बन पाए, और फिर यहाँ से एक वायर निकाला और यहाँ से एक वायर निकाला। तो ये डिवाइस कैसी हो गई, 2 टर्मिनल डिवाइस। अब इसे सर्किट में जोड़ने के लिए 2 वायर्स मौजूद हैं। तो ये जो वेफर है, इस वेफर का एक छोटा सा हिस्सा हमको केवल देखना है। मान लो कि ये छोटा सा पार्ट। तो अब हमारे हाथ में क्या आ गया, देखो ये एक ब्लॉक आ गया जिसमें एक तरफ है एन और एक तरफ है पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ये बीच का जो प्लेन है अभी तुम्हें दिखाया था, ये है पीएन जंक्शन। यहाँ पे और यहाँ पे 2 मेटल डिपॉजिट हैं जिनसे 2 टर्मिनल्स निकल रहे हैं वायर के, और
इसको हम कहेंगे पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, आई होप कि आपको 3D में क्या सिचुएशन है समझ में आई होगी। अब हम ये समझेंगे कि ये जो बीच का जंक्शन पॉइंट है जहाँ दो डिफरेंट तरीके के सेमीकंडक्टर्स मिले, वहाँ क्या एक्टिविटी शुरू हो गई। तो हमने जो कुछ समझा उसको हमने पॉइंट में लिख दिया, दैट अ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल इज टेकन like silicon, it is doped with a pentavalent impurity. The whole semiconductor piece is doped so that whole material becomes n-type semiconductor. Now trivalent impurities are diffused in the same piece of the large concentration, in the same piece in large concentration, so that up to some depth of this material the semiconductor becomes p-type semiconductor. Then a junction is formed. You know, the junction is formed, that is junction is a plane between the two types of semiconductor. अभी हमने एक 3D मॉडल में इसको समझा था, जो कि n टाइप और p टाइप सेमीकंडक्टर के बीच का प्लेन है, और ये सेमीकंडक्टर हमारे लिए डायग्राम में एक ब्लॉक डायग्राम बना रहा है pn जंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पर ये n टाइप, ये p टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसको एज अ pn जंक्शन डायोड यूज करने के लिए, इसको 2 टर्मिनल डिवाइस की तरह से यूज करने के लिए हम इसके दोनों तरफ मेटल डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक, 2 मेटल कॉन्टेक्ट्स आर डिपॉजिटेड एट द 2 प्लेस ऑफ दिस सेमीकंडक्टर वेफर, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझो, that before formation of this junction, जब ये n टाइप सेमीकंडक्टर बना था तब भी इसमें जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे। तो ये जो वेफर है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। हालांकि n टाइप इम्प्योरिटी ने इसको एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री डोनेट किया था, और उसकी वजह से इस कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही प्रोटॉन्स थे एटम्स में, और इलेक्ट्रिकली एन टाइप सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल। जब हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया इतने पोर्शन को, तो भी जितने होल्स थे वो होल्स कौन से थे, जो नेचुरली उस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम था, जिसकी वजह से वो सिर्फ 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स के साथ इंगेज हो पाया, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम। और एक मतलब नेचुरली एक लैक ऑफ और वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बचती है, जिसे हम होल बोलते हैं। तो पी टाइप में, पी टाइप इम्प्योरिटी ने बहुत सारे होल्स पैदा किए। उन होल्स की वजह से इसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी बढ़ गई, लेकिन फिर भी जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे इस मटेरियल में, और ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था और ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखना है, दैट बिफोर फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन either it is n type or p type, although it's having majority carriers as electron and it is having majority carrier as holes, but the two are electrically neutral. ठीक है, now pn junction is formed. This is a surface, this line is representing a surface between p side and n side. Now what happens on n side? Number of electrons are much more in comparison to number of holes. On p side, number of red marked holes are much more than black marked electrons, because in n side majority charge carriers are electrons, on p side majority charge carriers are holes. So this difference in concentration makes electrons of n side to diffuse, crossing the junction towards p side. It's similar as if you are having a glass of water and you drop 1 or 2 ink drops in the water.
The concentration of ink is here high and there is no ink at all. So ink starts diffusing through the water. ठीक, ये तो घर पे आराम से करके देख सकते हो. सेम एक्शन यहाँ होता है. हायर कॉन्सेंट्रेशन जोन से इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन क्रॉस करके पी साइड में आने लगते हैं और जब ये पी साइड में आएंगे तो इनको सामने होल्स दिखेंगे, रेड मार्क्ड होल्स. तो अब क्या हुआ कि देखो, पॉजिटिव आयन और उसके साथ मतलब एटम और उसके साथ एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन था जो बहुत आसानी से फ्री हो सकता था. वो इलेक्ट्रॉन एन से पी साइड में जंप कर गया और यहाँ पर उसको दिखा होल और इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइन हो गया. तो अपने पीछे जो एटम वो छोड़ गया उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया और जिस एटम को उसने ज्वाइन किया उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया. तो ये प्लस आयन बचा और ये माइनस चार्ज के साथ ये एटम नेगेटिव आयन हो गया. सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड पे क्रॉस करके आ रहे थे वो होल के साथ रिकम्बाइन करके पीछे पॉजिटिव चार्ज छोड़ कर आ रहे थे और जहां वो रिकम्बाइन कर रहे थे वो नेगेटिव चार्ज लेयर बन रही थी और इस डिफ्यूजन प्रोसेस से जंक्शन पर दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी प्रोड्यूस होने लगी. जबकि जंक्शन बनने से पहले एन टाइप और पी टाइप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे. अब इन इलेक्ट्रॉन्स, इन चार्ज डेंसिटीज ने क्या किया कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी. पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ये एरो इस जंक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब सोचो, जो इलेक्ट्रॉन्स अब एन साइड से पी साइड में आना चाहते हैं उनको ये नेगेटिव चार्ज लेयर अब अपोज करेगी और जो होल्स पी साइड से एन साइड में आना चाहते हैं उनको ये पॉजिटिव चार्ज लेयर अब अपोज करेगी. अब डिफ्यूजन में थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ गया, लेकिन फिर भी अभी ये जो लेयर है ये इतनी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव नहीं है कि ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को इस पार आने से रोक सके. तो अभी भी इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन और दूसरी साइड में आकर होल्स के साथ रिकॉम्बिनेशन चलेगा. उसकी वजह से इस साइड में पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाएगी और इस साइड में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाएगी और जब चार्जेस बढ़ेंगे तो उन चार्जेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो भी इंक्रीज करेगी, स्ट्रेंथन होगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है. ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है? जो डिफ्यूजन को रोक रही है, उसको अपोज कर रही है. तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ इतनी हो जाएगी कि वो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्यूजन को एन से पी में पूरी तरह से रोक सके तो ये डिफ्यूजन बंद हो जाएगा और यहाँ पर एक किस्म का डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा. इस साइड में पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी अपीयर हो जाएगी, इस साइड में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी अपीयर हो जाएगी. जंक्शन पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगी. इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया और ये पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके का है कि अब एन से पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन ये चार्ज लेयर नहीं होने दे रही है. तो अब पीएन जंक्शन पर एक खास रीजन डेवलप हो गया. ये इस रीजन के पास एक खासियत तो ये है कि यहाँ पे कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर्स जो मूव कर सकते हैं, फ्री है घूमने के लिए, वो नहीं बचे. क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से आए
उन सब ने यहाँ होल से रिकम्बाइन किया। होल से रिकॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि कोवैलेंट बॉन्ड में सिलिकॉन के या इम्प्योरिटी एटम के कोवैलेंट बॉन्ड में जो वैकेंसी थी वो इलेक्ट्रॉन ने इधर से इधर आके फिल कर दी। तो अब जो इलेक्ट्रॉन इधर लूजली बाउंड था, फ्री था, वो अब इधर कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर आ गया। तो अब वो फ्री नहीं है, अब वो बॉन्ड के अंदर बाउंड कंडीशन में है। तो ये जो लेयर बन रही है, ये लेयर, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसमें होल्स नहीं है जो कि इधर उधर मूव कर सके। तो इधर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो मूव कर सके, इधर होल्स नहीं है जो मूव कर सके। तो ये रीजन इट्स डिप्लीटेड ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स। मोबाइल का मतलब वो जो मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्योर पॉजिटिव और निगेटिव आयंस बचे, चार्ज डेंसिटीज बची, लेकिन मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं बचे। यहाँ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन था वो आ चुका है और यहाँ वो कोवैलेंट बॉन्ड में बंध चुका है। तो एक तो ये कि यहाँ मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं बचे। दूसरा, यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया अक्रॉस द जंक्शन। which is opposing diffusion of electron. Right? Across the junction from N side to P side. From N side to P side. तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑपोजिंग इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम एन साइड टू पी साइड. सो दैट इज व्हाई दिस रीजन इज कॉल्ड depletion region because it is depleted of mobile charge carriers, and this potential difference is known as potential barrier because this potential difference stops electron to diffuse from n side to p side. So it's a kind of barrier for the electrons of n side and holes of p side. तो ये खास एक्टिविटी हुई जंक्शन पर. जंक्शन फॉर्म होते ही क्या हुआ, एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई अक्रॉस द जंक्शन. और अब ये पीएन जंक्शन फर्दर डिफ्यूजन नहीं करने दे रहा है. हाँ, एक बात है, ये जो ब्लैक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स पी साइड में है, इनके लिए ये फील्ड कंफर्टेबल है. ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होकर अभी भी इधर से इधर जा रहे हैं. और ये जो होल्स हैं जो इन साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इनके लिए भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंफर्टेबल है क्योंकि ये इस नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होकर इधर से इधर जा रही है. लेकिन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मूवमेंट कंप्लीटली बंद हो चुका है. तो अब हमने जो कुछ समझा उसको पॉइंट वाइज हम कैसे लिखेंगे नोट्स में. गेट रेडी विद योर पेन पेंसिल. नोट्स के पॉइंट्स नोट करो, वीडियो पॉज कर लेना जहाँ ज़रूरत हो, और साथ में हम वो दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जिसमें से एक तो बहुत बहुत एक्सपेक्टेड है इस साल, दैट इज पोटेंशियल बैरियर एंड डिप्लीशन रीजन. तो चलो नोट करो, जंक्शन फॉर्म हो गया था, उसके बाद देयर इज concentration of electron on n side much greater than concentration of electron on p side. Similarly, concentration of hole is much more on p side in comparison to concentration of hole on n side. So on n side majority charge carriers are electrons, minority charge carriers are hole. On p side majority charge carrier are holes, minority charge carriers are electrons, and
concentration of electron into concentration of hole at either side is equal to concentration of charge carriers on in intrinsic semiconductor square. ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, रिलेशन है, जो तुमको याद रहना चाहिए कि ये रूल, ये रिलेशन जब सिंगल था, प्योर सेमीकंडक्टर था, तब भी यही इस्टेब्लिश था। जब वो एन टाइप और पी टाइप में बदल गया तब भी ये होल्ड कर रहा है। अब क्या हुआ? ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट डिफ्यूजिंग फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, एंड इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूज करना और होल्स रिकॉम्बिनेशन के थ्रू इधर से उधर मूव करते हैं, तो हम कहेंगे होल्स स्टार्ट डिफ्यूजिंग फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। As a result of this diffusion, following changes takes place at the junction. On n side, electrons leave their atom, cross the junction, leaving behind immobile, जो चल नहीं सकते, लैटिस में फिक्स है, positive charge atoms. On p side, holes recombine with electrons. कौन से electrons? Which are diffusing from n side to p side, and these atoms which receive these electrons, they attain negative charge. इन दोनों एक्शंस का असर क्या हुआ कि on both sides of the junction, layer of immobile positive and negative charged atoms starts developing. इसका असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि अर्लियर द पी साइड एंड एन साइड वर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट नाउ ऑन पी साइड नेगेटिव चार्ज डेंसिटी एंड ऑन एन साइड पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी स्टार्ट्स अपीयरिंग। और इस वजह से एक बहुत खास बात हुई जंक्शन के ऊपर। अब इस डेफिनेशन को सब ध्यान से देखेंगे और वीडियो पॉज करके लिखेंगे और ये डेफिनेशन एज इट इज लर्न करेंगे। रीजन नियर जंक्शन इज डिप्लीटेड ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स। डिप्लीटेड मतलब वहां पे मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं है। डिप्लीटेड का मतलब होता है अभाव, है ना, डेफिशिएंसी। दिस रीजन near junction is depleted of mobile charge carriers and is called depletion region. ये जो shaded area है ये depletion region कहलाता है। And due to these charge densities appearing on two sides of junction, an electric field is established across the junction. Now this electric field is at the junction because there is potential difference across the junction. You have seen n side पे positive charge layer है, p side पे negative charge layer है। जो positive charge layer है n side की, that is at higher potential, and जो negative charge layer है p side की, that is at lower potential। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने जंक्शन पे एक पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश कर दिया, और जो एन साइड की हायर पोटेंशियल जोन थी, हायर पोटेंशियल रीजन था, उस तरफ से पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम एन साइड टू पी साइड अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन। तो इसको हम एक बार फिर ठीक से समझेंगे, फोकस करो इस बात पे। दिस पॉजिटिवली चार्ज डेंसिटी on n side is at higher potential, negative charge density on p side is at lower potential, and potential difference is gradually decreasing as we move from n side to p side. potential high से धीरे धीरे घटता हुआ, डिक्रीज करता हुआ n साइड से p साइड में एक पोटेंशियल
डिफरेंस या ग्रेजुअली डिक्रीजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट कर रहा है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो गई यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, it is opposing further diffusion of electron from n side to p side, but electron with sufficient energy still cross the junction. As a result, this electric field is increasing as the diffusion process is taking place. ठीक है ना, जंक्शन पर। और ये कैसे जंक्शन पर अपने मैग्नीट्यूड को वेरी करती है, अगर वो जानना चाहें हम तो एक ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में कंफ्यूज नहीं होना। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जंक्शन पर होती है। ठीक, ये बात, ये ग्राफ अभी तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको परेशान नहीं होना है। बस एक बात दिमाग में मेंटेन करनी है कि जंक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होती है और उसके बाद साइड्स में वो मैग्नीट्यूड उसका घटता है। पोटेंशियल डिफरेंस इस साइड में हाईएस्ट, और जैसे जैसे आप एन साइड से पी साइड में जाओ, ये पोटेंशियल डिफरेंस घटते घटते जीरो होता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एन से पी की तरफ घटता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या है कि वो जंक्शन पर उसका मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो अब क्या हो रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जंक्शन पे इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन पे इंक्रीज कर रही है, लेकिन फिर भी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड में डिफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिफ्यूजन की वजह से बढ़ रही है, स्ट्रांग हो रही है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस स्ट्रांग हो रहा है, ये फाइनली क्या करता है, as the charge density at the two sides is increasing because of diffusion, the field across the junction is increasing, so force opposing the electrons of n side, which are majority charge carriers on n side, force opposing the majority charge carrier crossing the junction also increases, है ना। जो फोर्स है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो रही है तो उसे रोकने वाला जो QE फोर्स है जंक्शन पर, वो भी स्ट्रांग हो रहा है। सो फाइनली देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस and there is an electric field strong enough at the junction so that electric field and potential difference or potential barrier stops further diffusion of charge carriers across the junction. Equilibrium establish हो गया। तो सिचुएशन क्या बनी, बहुत फोकस करके सुनो। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हुई जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जंक्शन पर है। एक पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश हुआ जिसका मैग्नीट्यूड हाई पोटेंशियल एन साइड के हाई पोटेंशियल से ग्रेजुअली डिक्रीज करके पी साइड के पोटेंशियल में लो पोटेंशियल जोन में आ जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द जंक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है इस रीजन में। केवल इस रीजन में मोबाइल चार्ज कैरियर एब्सेंट है, तो ये डिप्लीशन रीजन कहलाता है। इस रीजन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज ऑपोजिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू डिफ्यूज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पोटेंशियल, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस रीजन के बाहर अभी भी जो एटम्स लैटिस के हैं और उनके साथ जो इलेक्ट्रॉन्स लैटिस में जैसे अरेंज थे पहले, वो अभी भी वैसे ही अरेंज है। पी साइड में होल्स एटम के साथ अटैच है और एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स एटम के साथ अभी भी अरेंज है। ये कहाँ का है, डिप्लीशन रीजन से
बाहर दोनों साइड में। यहाँ पे कोई पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। ये सारा कुछ कहाँ हो रहा है? जंक्शन के बिल्कुल क्लोज विसिनिटी में हो रहा है। ठीक, तो अब हमें समझ आ गया कि डिप्लीशन रीजन क्या है। दैट रीजन एट द जंक्शन और नियर द जंक्शन वेयर मोबाइल चार्ज कैरियर्स आर एब्सेंट। पोटेंशियल बैरियर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस established across the junction which opposes further diffusion of electron from n side to p side. That potential difference is called potential barrier. So potential difference developed across the depletion region which stops diffusion of majority charge carriers, electron from n side and holes from p side. Majority charge carriers stops diffusion of majority charge carriers across the junction. That potential difference is called potential barrier. बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको इसी लैंग्वेज में लर्न करनी है। डेफिनेशंस शुड बी वेरी परफेक्ट इन इट्स स्ट्रक्चर। इस डिप्लीशन रीजन की विड्थ कितनी होगी, ये इस पर डिपेंड करता है कि कितनी इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन डोप की गई है। अगर पी साइड में स्ट्रॉन्ग ट्राईवैलेंट कॉन्सेंट्रेशन डोप किया गया है, बहुत कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो बहुत छोटे से रीजन में इतने होल्स मिल जाएंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को कि वो रिकम्बाइन करके यहाँ छोटे से रीजन में ही सफिशिएंट नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर दें कि वो फर्दर इलेक्ट्रॉन के क्रॉस करने को रोक सके। सिमिलरली अगर यहाँ पर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का हाई कॉन्सेंट्रेशन डोप्ड है तो बहुत छोटे से रीजन में ही सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे जो जंक्शन क्रॉस करके ये स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर दें छोटे से रीजन में ही, कि ये इलेक्ट्रॉन्स का फर्दर डिफ्यूजन बंद हो जाए, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए। तो अगर इस साइड की विड्थ x1 और इस साइड की चार्ज डेंसिटी की विड्थ x2 हो तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ होगी x1 प्लस x2। यहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर चाहिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्यूजन को रोकने के लिए, वो मान लो हो VB पोटेंशियल बैरियर। तो अगर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ये जो विड्थ है ये कम हो जाएगी, छोटे से रीजन में ही सफिशिएंट पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाएगा और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डिफाइन होती है पोटेंशियल डिफरेंस across the length across which this potential difference is established, ये अगर सेम वैल्यू है और ये आपकी डोपिंग बढ़ाओ तो कम होती जा रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो अगर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ सिकुड़ती है, डिक्रीज करती है, एंड बिकॉज ऑफ इट व्हेन दिस इज डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करती है। सो फॉर हायर डोप्ड पीएन जंक्शन electric field is strong at the junction. Get it? So इस पॉइंट को हमने कैसे लिखा? Width of depletion region depends upon doping concentration. Higher is doping concentration, narrower will be depletion region. तो ये हो गया आपके पीएन जंक्शन का एक डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे कि ये जो पीएन जंक्शन है इसको हम
टू टर्मिनल डिवाइस की तरह यानी जंक्शन डायोड की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं।